السلام علیکم پاکستان، میں ہوں آپ کی ہوسٹ شاہ رخ طارق اور میرے ساتھ موجود ہیں میرے کو ہوسٹ مسٹر سمی شیخ صاحب، اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روشن پاکستان، جس میں مختلف زندگی کے شعبہ اعجاز سے تعلق رکھنے والی شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہوتی ہیں۔ تو کرتے ہیں پروگرام کا باقاعدہ آغاز اور چلتے ہیں اپنے مہمانوں کی جانب۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم ارسلان عطاری صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور ہمارے ساتھ دوسرے مہمان ہمارے موجود ہیں عبدالستار نیازی صاحب، جنرل سیکریٹری مزدور اتحاد ٹریڈ یونین فیڈریشن، السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں جی۔ اور ہمارے تیسرے گیس ہیں فرید زینب زیب کمل باجی، شعبہ خواتین کمیٹی کے ممبر ہیں، السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید۔ اور ہمارے دوسرے جو کیا نام ہے، طارق صاحب جی، جو کہ محمد میاں طارق صاحب، پریزیڈنٹ تاجر اتحاد کلیفٹن ڈیفینس کے نامی گرامی شخصیت اور سوشل ورکر، السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج کل حج کا مہینہ ہے اور ماشاءاللہ سے عازمین حج کے قافلے جو ہے وہ رواں دواں ہیں اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف، اور ہمارے بہت سارے مسلمان بہن بھائی ایسے ہیں اور ہم خود بھی اس میں شامل ہیں کہ ہمیں بہت ساری چیزوں کا علم نہیں ہوتا۔ تو ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ارسلان عطاری صاحب، تو ہم ان کی طرف چلتے ہیں اور ان سے جانیں گے کہ حج کی فضیلتوں کے بارے میں کچھ بیان فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت جل شانہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، لوگوں کے لیے اللہ عز و جل کے گھر کا حج فرض ہے جو اس کی استطاعت رکھتا ہو۔ قرآن مجید نے ہمیں ہر چیز کی رہنمائی دی ہے۔ اس میں کیا ہے، ایک اس میں جز آ گیا ہے کہ لوگوں کے لیے اللہ عز و جل کے گھر کا حج فرض ہے، فرضیت کا حکم آ گیا، اور پھر ارشاد فرمایا من استطاع الیہ سبیلا، جو اس کی استطاعت رکھتا ہو۔ حدیث مبارک میں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس قد فرض علیکم الحج فحجوا، اے مسلمانوں تم پر حج فرض کیا گیا ہے۔ اچھا، فرضیت کے حوالے سے تو ہم نے سنا حج ہمارے اوپر فرض ہو چکا ہے، لیکن اب استطاعت سے مراد کیا ہے؟ استطاعت سے مراد یہ ہے کہ حدیث مبارکہ میں بیان فرما دیا گیا، جو سواری کی اور طعام کی استطاعت رکھتا اس کے اوپر حج فرض ہے۔ اب علماء کرام نے اس کو مزید ایکسپلین کیا، کیونکہ آج جدید دور کے مطابق اگر ہم دیکھیں، کیونکہ کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اس دور کے مطابق اس کو اگر علماء کرام ڈیفائن کرتے ہیں، اس کے حوالے سے ایکسپلین کرتے ہیں، تو اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ علماء کرام نے ان کو بالکل ایزی انداز کے ساتھ سمجھانے کے لیے لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہاں سے مکہ مکرمہ تک، مکہ مکرمہ میں طعام قیام کے حوالے سے اور واپسی آنے تک جو اس کے اخراجات رکھتا ہے اس کے اوپر حج فرض ہے۔ یہ تو فرضیت کے حوالے سے ہوگی۔ اور دوسرا اس کے حوالے سے یعنی کہ جو فضیلت کے حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں تمام تشریف فرماتے، تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بہت ہی خوبصورت صحابہ کرام کے ایک یہ تھا کہ وہ آقا کی بارگاہ میں سوال کرتے اور آقا بہترین انداز کے ساتھ انہیں سمجھاتے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اس کے بعد فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اس کے بعد آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حج کرنا۔ دیکھیے حج اگر ستون کے حوالے سے بات کی جائے تو حج بھی ایک ستون ہے، یعنی پلر، اسلام کے پلرز کی بات ہوتی ہے تو حج ایک ستون ہے۔ تو اس کے حوالے سے دوسرے فرمایا گیا کہ جو کعبہ معظمہ زاد اللہ شرفہ کی تعظیم کے لیے اور اس کو زیارت کرتا ہے اس کے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم حج، اگر ہم استطاعت رکھتے ہیں ہمیں حج بیت اللہ بھی کرنا چاہیے۔ اور دوسری اس میں ایک بات اور میں ایڈ کر دوں کہ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ ہم مالی حساب سے بہت اچھے ہوتے ہیں، استطاعت بھی رکھتے ہیں، لیکن اس میں پرابلم یہ آتی ہے، ہمارے مائنڈ میں سوالات آ جاتے ہیں
بیٹے کی شادی کر لیں یا بیٹی کی شادی کر لیں، یا اس کے علاوہ یہ مسئلہ حل ہو جائے، یہ مسئلہ، اس کے بعد ہم چلے جائیں گے. اس طرح کے ہمارے سوال آتے ہیں. دیکھیں اگر آپ کے اوپر حج فرض ہو چکا ہے، آپ استطاعت رکھتے ہیں تو آپ حج کریں. ماشاءاللہ. جزاک اللہ. بہت خوبصورت انداز میں آپ نے بیان فرمایا اور بات چیت کا سلسلہ ہمارا جاری رہے گا. میں چلتی ہوں اپنے دوسرے مہمان کی جانب جو کہ ہمارے عبدالستار نیازی صاحب، جنرل سیکریٹری مزدور اتحاد ٹریڈ یونین فیڈریشن سے تعلق رکھتے ہیں. جی سر، آپ کچھ اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیے کہ آپ مزدوروں کے لیے کس طریقے سے آپ کام کرتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس وقت محنت کشوں کی جو حالات ہیں وہ پاکستان میں بہت ہی یہ سمجھ لیں کہ بگاڑ کیپ بن چکا ہے، خصوصی طور پر مزدوروں کو جو علاج معالجے کے لیے. تو علاج معالجے کے لیے ایک سوشل سیکورٹی کا ادارہ قائم کیا گیا ہے جہاں مزدور جو رجسٹرڈ لوگ ہوتے ہیں ان کا علاج معالجہ ہوتا ہے. یہ ایک خود مختار ادارہ ہے جسے کنٹریبیوشن یعنی آجر اور اجیر کی کنٹریبیوشن سے وہ قائم کیا گیا ہے. اس کا مکمل بجٹ 100% جو ہے وہ اس سے ہے. اس کے جو پہلی ترجیح ہے وہ علاج معالجہ اور ان کے فلاح و بہبود ہے. اس وقت وہاں پہ یہ صورتحال ہے کہ علاج معالجہ دینا تو دور کی بات ہے، ٹینڈر ہوتا ہے، ٹینڈر میں جو ادویات کمپنیاں حصہ لیتی ہیں وہ اپنا ٹینڈر پاس ہوتا ہے. ٹینڈر پاس ہونے کے بعد وہ کمپنیاں ادویات دینا بند کر دیتی ہیں. تو جو مافیا وہاں بیٹھی ہوئی ہے وہ کیا کرتی ہے کہ اس سے اپنا ان کمپنیوں سے کمیشن لے لیتے ہیں. پھر وہ لوکل کمپنیوں کی کہ جی وہ کمپنیاں ادویات نہیں دے رہی ہیں اور ان سے جو ہے نا وہ ادویات لوکل کمپنیوں سے غیر معیاری وہ خود جو ہے نا پرچیز کرتے ہیں. تو اس وقت تقریباً 50% سے بھی زائد جو ادویات ہیں وہ لوکل ہیں. اب نمبر 2 بات پہ آ جاتے ہیں. سوشل سیکورٹی میں اس وقت بے نظیر مزدور کارڈ کا اجرا کیا گیا. بے نظیر مزدور کارڈ کا جو کرونا آیا تھا، کرونا میں ILO نے وہ جو وبا پھیلی اور اس میں ILO نے پاکستان سے ایک مطالبہ کیا ہے کہ ہمیں جتنے بھی سیکورٹ رجسٹرڈ ورکر ہیں ان کی ایک وہ لسٹ فراہم کی جائے تاکہ ہم ڈائریکٹ ان کو امداد فراہم کر سکیں. بدقسمتی سے صوبہ سندھ کا پورے پاکستان حکومت پاکستان کے پاس بھی ان کا کوئی رجسٹرڈ ڈیٹا نہیں تھا. تو پھر سب سے پہلے جو ہے نا اپنا ورلڈ بینک کے ساتھ پنجاب حکومت نے ایک معاہدہ کیا. اس معاہدے کا IT کے نام سے انہوں نے ایک جو ہے وہ ان کی رجسٹریشن شروع کی. اسی IT کو انہوں نے جو ہے نا سندھ حکومت کو بھی مفت میں فراہم کیا، بغیر کسی اپنا کاسٹ کے مفت میں وہ ڈیٹا فراہم کیا کہ آپ بھی ان کی رجسٹریشن شروع کریں. تو یہاں پہ کیا کیا کہ سندھ حکومت نے بدقسمتی سے انہوں نے بے نظیر مزدور کارڈ کے نام سے کو رجسٹریشن شروع کی اور اسے سندھ حکومت نے سوشل سیکورٹی کے سر سونپ دیا. سندھ سوشل سیکورٹی نے کیا کیا کہ اسے بجائے اس پنجاب کے ڈیٹا جو مفت میں فراہم کیا گیا اس سے لینے کے بجائے انہوں نے نادرا کو 2 ارب روپے میں وہ اپنا ہیئر کر لیا. سیکورٹ ورکروں کو جو حکومت سندھ نے اس میں بجٹ نہیں دیا، جو ہمارا سیکورٹ ورکروں کا کنٹریبیوشن جاتا ہے اس سے 2 ارب روپے دے کے ان کو ہائر کر لیا گیا اور انہوں نے وہ رجسٹریشن شروع کی. وہ صرف NIC نمبر سے، یعنی کہ اس میں NIC نمبر ہے، کمپنی کا نام نہیں ہے، اس میں رجسٹریشن نمبر نہیں ہے، کس کمپنی کا ملازم ہے، یہ کب اگر وہ خدا نخواستہ چلا گیا. کمپنی سے رجسٹریشن کی صورت میں یہ ہوتا ہے کہ جو سوشل سیکورٹی کا ایکٹ ہے اس کے تحت R5 کارڈ ہمارے پاس دو قسم کے ورکر ہوتے ہیں، ایک شورٹ ورکر، ایک سیکورٹ ورکر. شورٹ ورکر وہ ہوتا ہے جب کوئی بھی ملازم کسی ادارے میں ملازمت اختیار کرتا ہے تو وہ شورٹ ورکر کہلاتا ہے. سوشل سیکورٹی میں کوریج ہو گیا، وہ جب وہ اپنا کنٹریبیوشن بھیجنا شروع کرے گا پھر وہ سیکورٹ ورکر کہلائے گا. اس کو وہ R1 وہ کریں گے اور R2 تصدیق کر کے کمپنی سوشل سیکورٹی کو بھیجے گی بما کنٹریبیوشن کے. ان کو ایک جو ہے نا R5 کارڈ رجسٹریشن نمبر ان کو سوشل سیکورٹی سے ملے گا جو ابھی بے نظیر
मजदूर कार्ड में नहीं मिल रहा। यानी कि मजदूर मजदूरी रहा अभी तक, उसके लिए, उसकी फलाह बहबूद के लिए, इसके उसकी फलाह बहबूद तो करने की दूर की बात है ना, उसी के फंड से जो है इन्होंने 2 अरब रुपया दे दिया। वो बस कहते हैं ना, अंधा भागे बांटे अपने अपने को रेवड़ियाँ। अब नंबर 2 बात पे आ जाते हैं कि जो 2 अरब रुपया तो हमने दे के उनको हेर कर लिया, उसके बावजूद जो मुलाजम, क्योंकि हमने 2 अरब रुपया दे के उनको एक ठेका दे दिया, कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, तो जो उनके मुलाजमीन हैं उनको भी इस वक्त सोशल सिक्योरिटी अपना उन्होंने बाकायदा वो हेड ऑफिस है डायरेक्टर ने एक लेटर जारी किया कि इनकी तनख्वाह जो है वो सोशल सिक्योरिटी अदा करेगी। कहाँ से? वर्कर के कंट्रीब्यूशन। गुफ्तगू के सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। चलते हैं अपनी तीसरी मेहमान की जानिब। हमारी तीसरी मेहमान है नामवर शख्सियत मोहतरमा हमारी ज़ेब कमल बाजी, शोबा ख़वातीन की मेंबर, कमेटी मेंबर भी हैं, और अमूमन आपने मुख्तलिफ़ प्रोग्रामों में देखा होगा हमारी। बस ज़ेब बाजी से मैं सवाल ये करूँगा, ख़वातीन के हकूक़ के लिए क्या ऐसा इक़दाम किया जा रहा है जिनकी मेंबरशिप, आप ज़ाहिर सी बात है एक सीनियर मेंबर हैं, तो हमारे बहुत से व्यूवर्स हैं और बहुत सी ख़वातीन इस सवाल पूछती हैं बाकायदा, तो इस पर आप क्या अपने रोशनी डालेंगे? आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे इनवाइट किया, बहुत थैंक्स। उसके बाद मैं ये कहूँगी कि शोबा ख़वातीन के लिए जो हमने एक स्टेप लिया है, और बल्कि गवर्नमेंट की तरफ से भी हमने अपना एक ये जो भी प्रोसीजर चल रहा है उसको हमने पास कराया कि बाइख्तियार ख़वातीन को इख्तियार देना चाहिए कि वो भी शाना बशाना होकर आगे बढ़ें और अपने इख्तियारात को बखूबी अंजाम दें। इसलिए कि पहले जो वक्त गुज़र चुका है उसमें ये होता था कि ख़वातीन आगे नहीं आए, तो मैं कहती हूँ कि ख़वातीन को भी मर्द के शाना बशाना रहना चाहिए, इसलिए कि दोनों एक गाड़ी के 2 पहिए हैं, तो इसको लेकर चलना चाहिए और हर खातून को अपना इख्तियार मिलना चाहिए। जैसा कि बहुत स्ट्रगल करती हैं ख़वातीन भी, हाउस वाइफ भी, सोशल वर्कर भी, और बहुत सारी चीज़ें मैनेज कर रही होती हैं, तो इसके हिसाब से हमने भी यही सोचा कि ख़वातीन को इख्तियारात देना चाहिए, और इंशाअल्लाह ताला हम इस टॉपिक पे बहुत नज़रसानी है और इंशाअल्लाह ताला कामयाबी की तरफ रुजू कर रहे हैं सब, इंशाअल्लाह हम सब कामयाब। थैंक यू सो मच। मियाँ मोहम्मद तारिक भाई जो कि प्रेसिडेंट है ताजिर इत्तेहाद क्लिफ्टन डिफेंस के और सोशल वर्कर भी हैं, अमूमन हमारे प्रोग्राम में आपने देखा होगा। तारिक भाई मुझे ये बताएं, ताजिर इत्तेहाद कमेटी में आजकल सुना है कि बहुत से ताजिर्स को बहुत सी शिकायतें हैं, बल्कि पूरे कराची में ही चल रहा है, तो ये प्रॉब्लम कब तक कैसे हल होगी, है कब तक चलेगी? थैंक यू। पहले तो जैसे बाजी ने कहा, हम आपका शुक्रिया भी अदा करते हैं, आपके चैनल का भी, पूरी आपके आने का बहुत शुक्रिया, और आम तबके की आवाज़ बुलंद कर रहा है, खराज तहसीन पेश करते हैं। प्लस दूसरा आपने जो, अच्छा ये ताजर को जो फिक्स किया होगा ना, ताजर भी मेरे नज़दीक तो हर बंदा ही ताजर है, हर बंदा। आप अगर मुझसे सच पूछते हैं तो कोई ना कोई काम कर रहा है, तो जो मसाइल हैं वो मेरे ख्याल तक अभी इस वक्त जो है कराची मसाइल इस्लाम का घर बन चुका है। जो मैं क्लिफ्टन डिफेंस के मसाइल आपके आगे बयान करूं ताजरों के, तो मेरे ख्याल तक वही आप पूरे कराची में ले लें। अब इसमें सर फहरिस्त आप कराची के मसाइल जो हैं, ताजरों के मसाइल हैं, आम आदमी के मसाइल हैं। आप एजुकेशन से शुरू करें, हाल देख लें, सरकारी स्कूलों लाइट हो गए, लाइट आपके बच्चे बिल्कुल तालीम नाम की तो वहाँ चीज़ ही नहीं है, और प्राइवेट स्कूल इतनी एक्सपेंसिव हैं कि वहाँ आम आदमी, मुतवस्सित तबके का आदमी अब तो महरूम ही हो गया बच्चों को तालीम देने से। प्लस इसके आगे आप जाएँ, लॉ एंड ऑर्डर पे चले जाएँ। अब जब आपकी तालीम नहीं है, आपकी एजुकेशन नहीं है, आपको नौकरियां नहीं मिल रही, पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है कराची में जिसकी इंतहा नहीं है। आपका सिनेरियो जो कराची का है, एक तरफ सी साइड है, दूसरी साइड बलोचिस्तान, ये नादरन बाईपास की तरफ थोड़ा बढ़ गया, इतनी सारा डबल हो गई पॉपुलेशन। तो आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि जब तालीम भी नहीं है, नौकरियाँ भी नहीं हैं, तो उससे लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल पैदा होते हैं, पानी के मसाइल। अब पॉपुलेशन बढ़ गई है, तो आपको पता है एक कोने से आप जब शुरू होते हैं, क्लिफ्टन से शुरू हूँ, और आखिरी कोने तक पहुँचने में आपको 2 से ढाई घंटे लगते हैं। अब इन मसाइल के मैं अभी मुख्तसर, आपके चैनल में टाइम भी जो है मुख्तसर होता है, इसको दूर करने के लिए कोई खातिर खा इकदाम नहीं किए गए। आपने देखा होगा वही टूटी फूटी सड़कें, वही सारा निज़ाम। भाई जब इतनी सारे लोग बढ़ गए हैं, आवाम बढ़ गई है, दुनिया बढ़ गई है, डबल हो गया है, तो ये पूरे पाकिस्तान को जनरेट
یہاں سے ریونیو جنریٹ ہوتا ہے اور پورا پاکستان اس میں ہوتا ہے. آپ اس کے لیے کیا کر رہے ہو؟ کچھ بھی نہیں. حکومتیں جو ہے وہ بالکل سوئی ہوئی ہیں. مقامی حکومت, ایک دفعہ مقامی حکومت آئی تھی, آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کو فیڈرل گورنمنٹ نے تھوڑی مدد کی تھی, کراچی تھوڑا سا اٹھا تھا, اس کے بعد بالکل چوں کا توں ہے. تو یہ سر سمیع صاحب سارے بڑے بڑے مسائل ہیں, ان کے اوپر اگر ہم گفتگو کریں تو یہ آپ کے چینل کو کم از کم 2 گھنٹے چاہیے, ایک لمبی گفتگو ہو جائے گی. تو ان کے دوری کے لیے, اس کے لیے ایک منظم ایماندار حکومت, مقامی حکومت کو اختیار دینے چاہیے, فیڈرل گورنمنٹ اس کی مدد کرنی چاہیے, تو مقامی لوگ ہونے چاہیے. اب آپ کو پتہ ہے مقامی حصہ تو بالکل تھوڑا سا ہے, باقی سارے تو انٹیریئر سے بیٹھے ہوئے ہیں. تو کیسے یہ معاملات, یہ ملک, یہ کراچی اگر یہ اٹھ گیا تو آپ یقین جانیں کہ پورا پاکستان اٹھ گیا. نہیں, آپ نے ایک بات اچھی کی کہ اگر اس پہ پروگرام کیا جائے تو 2 گھنٹے لگ جائیں, لیکن واحد یہ پروگرام ہے جس کو فلسطین کے لیے جو آواز اٹھائی ہے اس چینل نے اور راؤ کرامت نے. بالکل اس وقت راؤ کرامت کی طبیعت ناساز ہے, ورنہ تو آپ کو پتہ ہے کہ مسلسل ہم نے جو پروگرام کیے ہیں فلسطین کے لیے آواز اٹھائی ہے. ہم آواز نہیں اٹھائیں تو کم سے کم ہمارے دل میں تسلی دے, نفرت کا اظہار تو کر سکتے ہیں. دیکھیں اس میں یقیناً جی, قطع کلامی کی معافی چاہتی ہوں. اصل میں ایک بریک پہ ہمیں جانا ہے. ہمارے ساتھ موجود تھے ارسلان اتاری صاحب, میں ان کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں عزت بخشی. ہمارے ساتھ کچھ اور مہمان ہیں جو بریک کے بعد ہمیں جوائن کریں گے, تو کہیں مت جائیے گا, واپس آتے ہیں اور گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. تو وی ول رائٹ بیک آفٹر اے شارٹ بریک. السلام علیکم پاکستان, اور ہم واپس آ چکے ہیں اپنی بریک سے, اور ہمارے ساتھ ہماری ایک نیو مہمان موجود ہیں, تو ان کی جانب چلتے ہیں, ان کا آپ کو انٹروڈکشن دیتے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں کوثر عاصم, جو کہ ایک اینکر پرسن ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسی ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. بہت بہت شکریہ, آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کیا. آپ کے آنے کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں عزت بخشی. اچھا کوثر کی طرف ہم کچھ سوال میں کرنا چاہوں گی. آپ ایک میڈیا پرسن ہیں, ایک اینکر کے طور پہ آپ نے جوائن کیا, تو کیسا تجربہ رہا آپ کا؟ میڈیا کے حوالے سے میرا تجربہ بہت اچھا رہا, مشکل رہا. مشکل اس لیے کہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو خود اپنا راستہ بنانا ہے. یہاں پہ آپ کی محنت ہی آپ کو آگے لے کر چلتی ہے. یہاں پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ سورس آپ کے کام آتی ہے. سورس کہاں تک کام آئے گی؟ آپ میں ٹیلنٹ نہیں ہے تو آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. آپ اسکرین پہ بھی ایک حد تک آئیں گے سورس کے ذریعے. آپ میں ٹیلنٹ ہے تو آپ کا نام, آپ کی شہرت ہی آپ کو آگے لے کر جائے گی. تو اس فیلڈ میں مشکلات آئی لیکن مزہ آیا, کیونکہ مجھے جو لوگ ملے وہ مجھے سنسیئر ملے. صحیح. آپ کے حوالے, جیسے کہ آپ جانتی ہیں کہ ایک تو میڈیا پرسن ہیں آپ پھر, اور ایک خاتون بھی ہیں, تو جب خواتین جاب کے لیے باہر نکلتی ہیں اٹس ناٹ این ایزی ٹاسک. تو آپ کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ کیا گھر والوں کی طرف سے کوئی آپ کو پریشر آیا, یا باہر والوں کی طرف سے, کس طرح سے آپ نے اس کو اوور کم کیا؟ بڑا آپ کا مزے کا یہ سوال ہے, کیونکہ دیکھنے والے جو ناظرین ہیں ان کو بھی وہ انجوائے کریں گے اس جواب کو. کہ دیکھیں جو سنگل لڑکیاں ہوتی ہیں ان کے لیے نکلنا بہت آسان ہوتا ہے, کیونکہ پیرنٹس سے اجازت مل جاتی ہے. لیکن جو میرڈ ہوتی ہیں ان کو پھر اپنے سسرال کو, اپنے ہسبینڈ کو لے کر چلنا پڑتا ہے. یہاں پر میں اس میڈیا کے حوالے سے اور چینل کے حوالے سے میں اپنے ہسبینڈ کا, اپنے پورے سسرال کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. بہت کوآپریٹیو ہے میرے ہسبینڈ جو عاصم ہے, انہوں نے مجھے بہت کوآپریٹ کیا. انہوں نے جگہ, جب تک آپ کے گھر والوں کی سپورٹ نہیں ہوگی آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. میرے سسرال والوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا. آج میں اگر اس مقام پہ ہوں, میں نے شروع جب اسٹارٹ کیا تھا TV1 سے تو ظاہر مشکلات تھی, ٹائم مینیج نہیں ہو پاتا تھا, گھر کو سپورٹ نہیں کر پاتی تھی, ٹائم نہیں دے پاتی تھی. صبح ہمیں لائیو پہنچنا ہوتا تھا, 7 بجے سیٹ پہ پہنچنا ہوتا تھا, واپسی کا کوئی ہمارا ٹائم نہیں ہوتا تھا. تو ظاہر سسرال جب سپورٹ نہیں کر رہا, فیملی سپورٹ نہیں کر رہی, تو بہت ایشو ہوتا ہے. گھر والوں کی سپورٹ بہت ضروری ہے. اگر ایک بہو, بیٹی, لڑکی باہر نکل رہی ہے تو اگر نکل ہی گئی ہے تو اس کو فیملی کی سپورٹ ضروری ہے. لیکن مشکلات شروع میں ہوتی ہیں, ہمیں گھر کو بھی لے کے چلنا ہے, ہمیں باہر کو بھی لے کر چلنا ہے. یہاں پہ دیکھیں آپ جب باہر نکل گئے ہیں, پیسہ کمانے آپ نکل گئے, تو باہر والے تو کمپرومائز نہیں کریں گے. صحیح بات ہے. ہم ان کو کام پورا چاہیے. میڈیا پرسن کو کوئی کام سمجھتے ہی نہیں, ہمارا کام تو سمجھتے ہیں کوئی بہت ٹف کام ہے. حالانکہ کاٹوں گی میڈیا کے حوالے سے اگر کہیں بولا جائے نا میڈیا پرسن ہے, ہاں ٹھیک ہے آپ میڈیا پرسن ہے, کام کیا کرتے ہیں؟ بس میڈیا کو کام نہیں سمجھتا, ہمارے کام کو کام ہی نہیں سمجھتا کوئی, نہیں سمجھتا. حالانکہ بہت ٹف کام ہے یہ, اور ایک عورت کے لیے تو بہت مشکل ہے. لوگوں کے ذہنوں میں جو ایک مسکنسیپشن ہے میڈیا کو لے کے, آپ کے خیال میں وہ کس حد تک درست ہے؟ غلط ہے. میڈیا اس وقت, میڈیا اگر نہیں ہو تو تمام مسائل کو کون دکھائے گا؟ میڈیا تو ان جگہوں پہ بھی گھس جاتا ہے جہاں پہ لوگوں کو اپنی جان, عزت, مال کا خطرہ ہوتا ہے. میڈیا تو نہیں سوچتی. دھماکے ہو رہے ہیں, میڈیا کھڑی ہوئی ہے.
بمباری ہو رہی ہے मीडिया खड़ी हुई है, जान का खतरा है वहाँ मीडिया खड़ी हुई है, कोई भी मंशियात का मामला है, पुलिस का मामला है, गवर्नमेंट का मामला है, मीडिया खड़ी हुई है. मीडिया अगर दिखाना बंद कर दे, फलस्तीन के मामले पे अभी आप लोग बात कर रहे थे, मैं सुन रही थी, मीडिया अगर दिखाना, चले बोल नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, मीडिया दिखा तो रही है, कुछ तो हमारा कंट्रीब्यूशन है, लेकिन उसको जब अप्रिशिएट नहीं किया जाएगा तो एक वक्त आएगा मीडिया भी ठंडी होकर बैठ जाएगी. सिला तो यहाँ किसी को मिलना नहीं है. मीडिया पर्सन को अगर देखा जाए, जितना काम कर रहे मीडिया के लोग कर रहे, बल्कि देखने वाले अच्छा है. आज ये प्रोग्राम अगर हो रहा है, मुझे बोलने का मौका मिला है, तो मीडिया में मैं समझती हूँ जो लोग काम कर रहे हैं, जो रिपोर्टर हैं, जो कैमरामैन हैं, जो मैं समझती हूँ कैमरे के पीछे भी है, उनकी इतनी मेहनत होती है, लेकिन उनको सिला नहीं है. ज़रूरी नहीं है बड़ी बड़ी जो पोस्टों पे उनको आप आगे करो, उनको आप ज़्यादा सहूलियात दो, आप उनको भी लेकर चलो. क्योंकि अगर एक कैमरामैन फील्ड में अगर आया है, एक रिपोर्टर फील्ड में आया है, तो वो भी जान और अपनी इज्जत को लेकर आगे बढ़ा, तो उसकी सपोर्ट बहुत ज़रूरी है. अच्छा, मैं नियाज़ी साहब आपसे पूछना चाहूँगी कि आप मज़दूरों के इत्तेहाद के लिए काम करते, तो जितनी भी मज़दूर बरादरी है उनमें फ़र्स्ट प्रायोरिटी आप उनके लिए किस चीज़ को देते हैं? उनके इलाज मुआवजे के हवाले से या उनके तनख्वाहों के हवाले से, किस चीज़ को आप अपनी पहली प्रेफरेंस पे रखते हैं? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया. हमारे पास जो है ना, देखो मज़दूरों के लिए फलाह बहबूद जो है वो सबसे पहले उनका रोज़गार है. रोज़गार के बाद फिर उनके जो है ना ये इलाज मुआवजा जो बाकी वो हैं वो चीज़ें आती हैं. तो इस वक्त पाकिस्तान पूरे में, ख़ुसूसी तौर पर सिंध में, एक तो ठेकेदारी निज़ाम, जिसे हम जो है ना वो आजकल इन्होंने अपने लॉ में भी उसको ऐड कर दिया है कि ये जी उसके पीस रेट फलां रेट के हिसाब से उन्होंने कर दिया है. ठेकेदारी निज़ाम में किसी वर्कर को कोई भी जो बुनियादी हकूक़ है वो हासिल नहीं है. जैसे ग्रेजुएटी है, उसका बोनस 5%, यानी कि वही मखसूस तनख्वाह पे वो 12 घंटे 16 घंटे 8 घंटे से लेके 12-16 घंटे तक उसे ड्यूटी दी जा रही है. नंबर 2 बात, हमने यहाँ पे हुकूमतों ने ये प्रोसेसिंग जोन कराची में जो हमें एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन EPZ के नाम से कराची में कैम्प है, तो ये तो बिल्कुल ही बेकार कैंप बन चुके हैं. यहाँ पे 10,000 से 20,000 यानी कि 10, 12, 15, 18, 20, 22 तक जो है वो तनख्वाह दी जा रही है. जबकि इस वक्त हुकूमत की तरफ से जो मुकर्रर करता है वो मिनिमम वेजेस 32 है, 32,000 रुपये मुकर्रर किए गए. वो लाजमी हमने देनी है, उससे कोई मुबरा नहीं है. और अगर कोई नहीं दे रहा तो वो उसका गैर कानूनी अमल है, उसके खिलाफ इदारों को चाहिए कि वो ना उन पे अमल दरामद करें. तो यहाँ अमल दरामद कराने के बजाय तो वो खुद जाते हैं, भत्ते लेके आ जाते हैं. अब नंबर 2 हम आ जाते हैं EPZ जो ये प्रोसेसिंग जोन के नाम से इदारे कायम है. वहाँ पे कोई भी वर्कर ना UBI में रजिस्टर्ड है, ना सोशल सिक्योरिटी में रजिस्टर्ड है. जबकि ये दो बुनियादी उसके जो है वो कानूनी और बुनियादी हकूक़ हैं कि ये 2 हकूक़ अगर उसको हासिल नहीं है. UBI में रजिस्टर होने का मतलब है कि अगर खुदा न खासा उसकी दौरान मुलाजमत डेथ हो जाती है तो उसके लवाकीन को, उसके बीवी बच्चों को UBI से जो पेंशन के हकूक़ हैं वो कम से कम 3 साल के 36 महीने होने चाहिए, तो उसको वो मिलेंगे. खुदा न खासा वो अपनी सर्विस मुकम्मल की 60 साल में पहुंच गया तो उसके 15 साल होने चाहिए, तो उसके बुढ़ापे का एक सहारा बन जाएगा. अब यहाँ पे तो जो है ना वो है ही नहीं. और ये बुनियादी हकूक़ है. इलाज मुआवजा उसके लिए बुनियादी हकूक़ है. इस वक्त जो UBI है, UBI ने अभी इस वक्त मिनिमम जो पेंशन दी जा रही है वो 10,000 रुपये है. 10,000 रुपये से कोई भी एक ज़ईफ़ुल उमर जो रिटायर हो गया, अब वो बुढ़ापे में है, तो लोगों के पास तो किराया नहीं है. अब वो 10,000 रुपये जो है ना वो अपनी ज़िंदगी जो है वो कैसे गुजारे. सही बात. इसका अंदाज़ा आपको भी है, हमें भी है. तो इन चीज़ों पे जो है ना हम हुकूमत पाकिस्तान से, ख़ुसूसी तौर पर हुकूमत सिंध के चीफ सेक्रेटरी, लेबर सेक्रेटरी और मिनिस्टर लेबर से कि ये जो इदारों में जैसे UBI है, सोशल सिक्योरिटी है, लेबर डिपार्टमेंट के इदारे हैं, इनको मुकम्मल पाबंद किया जाए कि ये तमाम जो कानूनी हकूक़ हैं मज़दूरों के उन पे अमल दरामद कराएँ, अपनी करप्शन बत्ताखोरियाँ बंद करें.
क्योंकि इस वक्त सोशल सिक्योरिटी हम ले लें या UBI, तो होता क्या है कि अब वो मैं आपको 2 इदारे गिना के देता हूँ। एक कासम टेक्सटाइल मिल है, वहाँ पे उनके 3 यूनिट हैं, तो तकरीबन मेरे अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 20 से 25 हज़ार वर्कर काम करते हैं। और सोशल सिक्योरिटी में कितने रजिस्टर हैं? एक यूनिट के 156, दूसरे यूनिट के 540, तो बाकी लोग कहाँ गए? किसी की रजिस्ट्रेशन नहीं होती। खुदा न करता एक वर्कर के केस मैंने कासम टेक्सटाइल से लड़ा, उसका ये मजदूरों के हकूक के लिए भी गबन किया जा रहा है, उनके साथ भी बेचारा मजदूर पीस रहा है जी। उसको आज दिन तक जो है ना वो कोर्ट से जाके उसको अपना कितने 5 साल के बाद उसको हक मिला कि कोर्ट ने 5 लाख रुपया कंपनी पे अवार्ड किया कि इसको दिया जाए। 5 साल धक्के खाने के बाद हम सिंध हाई कोर्ट हो गए, जैसे लेबर कोर्ट है, सिंध चीफ जस्टिस सिंध से भी हम मुतालबा करते हैं कि जो मजदूरों के केसेस हैं इनको तरजीह बुनियाद पर सुना जाए और इनके जल्द से जल्द फैसले किए जाए। मेरा सवाल है ज़ेब बाजी से। ज़ेब बाजी ख़वातीन शोबा कमेटी मेंबर रहे हैं, आप सीनियर मेंबर हैं, तो आपके यहाँ इज्तिमाई शादी और ये सब राशन का सिलसिला भी मैंने सुना था कुछ अर्से पहले आपने किया था। जी जी जी। और इज्तिमाई शादी का भी था। जी जी। तो मैं ये कहता हूँ वो ख़वातीन जो हैं जो आजकल डाइवोर्स तलाक का इशू बहुत बढ़ चुका है, क्योंकि मेरा वैसे बेसिकली तो आपको पता होगा मैच मेकिंग से ताल्लुक़ है। जी जी। तो बहरहाल आप इस पर कोई रोशनी डालें। जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जैसा कि अभी आपने कहा कि कुछ शादियाँ इज्तिमाई भी होती हैं और कुछ ऐसे नीडी भी होते हैं, ज़रूरतमंद हैं कुछ ख़वातीन, कुछ बच्चियाँ ऐसी जो अफोर्डेबल नहीं होते, तो उनके लिए अभी मैंने जो मेरी मतलब कर सकती थी मैं उनके लिए इजीली मैंने किया। माशाल्लाह 2 बच्चियों की भी शादी कराई है माशाल्लाह, अभी और पेंडिंग में है, तो इंशाल्लाह उसके लिए कोशिश हो रही है। और एक मेरा ज़ाती मतलब एक क्या कहना चाहिए कि मैं खुद चाहती हूँ कि एक सोशल माइंड भी है, दूसरा बिजनेस माइंड भी हूँ, और दूसरा ये चाहती हूँ कि नीडी जो भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनकी सब की ज़रूरियात को पूरा किया जाए। तो उसके लिए मैं चाहती हूँ एक कोई ऐसा इदारा बन जाए, कोई ऐसा कुछ मैं बना लूँ कि मैं बिल्कुल ईजीली सबके काम आऊँ और लोग इससे फ़ायदा भी उठाते हैं और ज़ाहिर दुआओं में भी याद रखते हैं। तो अपनी जो भी बेस है उसको हमें ये चाहिए कि जो भी ऐसे नीडियाँ ज़रूरतमंद हैं उनको देखा जाए। ख़ास तौर पे ख़वातीन बहुत परेशान हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। अभी जो मैंने बच्ची की शादी कराई बेइंतहा नीडी थी वो बच्ची, कि उसके लिए कोई भी खड़ा नहीं हुआ। तो मैंने उनसे कहा कि इंशाअल्लाह ताला जो मैं कर सकूंगी, तो बहुत दुआएं हैं, इतनी दुआएं दे रही हैं वो अभी तक कि मैं आपको बता नहीं सकती, पर दुआओं की दरख्वास्त होती है और हमारे साथ दुआएं। जी जी जी। तो मेरा ज़ाती मतलब एक ख्वाहिश कह लें कि मेरी ज़ाती ख्वाहिश है कि मैं कुछ ऐसा मतलब एक प्लेटफॉर्म बना लूँ कि मैं और भी मज़ीद जो लोग हैं जो मेरे से नहीं जुड़ पा रहे अभी वो भी जुड़ जाएँ इंशाअल्लाह। जी हमारी दुआएं आपके जी, साथ जी, थैंक यू हैं, और सो जो मच। खुशी एक मिलती है किसी जी, के काम जी। आके उसका कोई मोल नहीं होता। जी 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 बिल्कुल। मियां मोहम्मद तारिक भाई, मेरा आपसे सवाल है। सवाल क्या नॉर्मली बात है ब्रेक में हाँ ब्रेक आ जाए। हाँ वैसे टाइमिंग तो है, टाइमिंग होने वाली। लेकिन बहरहाल बैठ ताजिर इत्तेहाद आप लोग अमूमन क्या आप लोग को प्रेशराइज किया जा रहा है इस पे, क्योंकि सुना है कुछ मसले मसाइल भी चल रहे थे आप लोगों के यहाँ। ताजरों के तो मसले मसाइल चलते रहते हैं। हकीकत ये है कि कोई पूछने वाला नहीं है, कोई निज़ाम नहीं है मुल्क के अंदर। अब आपके सामने हैं सारी चीज़ें। जहाँ तक ताजरों के मसाइल हैं, ताजरों के मसाइल ज़्यादातर जो हमारी मार्केट होते हैं सिक्योरिटी के मसाइल होते हैं, तो वो जो हम सदर बनते हैं, हर मार्केट का अपना अपना सदर होता है, तो वो हम अपनी मदद आपके तहत संभालते हैं। अपनी मदद कहीं कुछ मामला होता है, मसाइल होते हैं, तो हम फिर एहतजाज शुरू करते हैं, कहीं ना कहीं हमारी सुनवाई जाती है। लेकिन जो आम तबका है हम चाहते ये हैं कि उनकी आवाज़ भी सुनी जाए। जो मुतवस्सित तबका गरीब आदमी पिस गया है महंगाई के अंदर, तूफान बरपा है महंगाई का, तो इसके बारे में हम आपके चैनल पर बैठ के बार बार अपने हम क्लिफ्टन डिफेंस में बैठे हुए हैं, हम अपनी मदद आपके तहत तो जो कर रहे हैं, जो इससे पीछे एरिया में चले जाएं। इतनी बड़ा शहर है कराची का, बहन जैसे कह रही थी, तो इसको संभालना जो है इस वक्त बहुत मुश्किल है। इसमें हम आवाज़ ही बुलंद कर सकते हैं। आप मीडिया चैनल ये एक कौम के लिए, आवाम के लिए एक बेहतरीन काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी आवाज़ जो है वो ऐवानों तक पहुंचनी चाहिए। उनको शर्म आनी चाहिए इस बात की कि आम आदमी खुदकशियाँ बढ़ गई हैं, लोग
भूख के अफलास के मारे अपने बच्चों को स्कूलों से निकाल रहे हैं। पूरे कराची के पूरे पाकिस्तान की ये हालत है, लेकिन कराची जब पूरे पाकिस्तान को चला रहा है, हर शहर के लिए एक मिसाल बना हुआ है, सबको दे रहा है, जनरेट कर रहा है पूरे मुल्क का रेवेन्यू, तो कम से कम उसको उसके मुताबिक हिस्सा तो देना चाहिए। इसको हिस्सा मिलेगा तो कराची में पानी के मसाइल, सफाई के मसाइल, कौन सा मसला है जो नहीं है। और इसको मैं आपके चैनल के तवज्जो से इतना कहूँगा कि अभी मकामी हुकूमतें बन गई हैं, तो इसको फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, इनको बाख्तियार करना चाहिए, फ्री हैंड देना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी, रिसोर्सेज, जितनी सारी चीज़ें हैं इनको दे के कराची के ऊपर देखें, कराची उठेगा, कराची को फल फूल लगेगा तो पूरा पाकिस्तान आपको ये मिसाल बन जाएगा। एक इसके लिए हम आपके चैनल से यही बैठ के इंशाल्लाह करेंगे, आलूदगी के ऊपर पौधे लगने चाहिए, हुकूमत ये कारोबार आगे पहुंचेगी इंशाल्लाह आपकी आवाज़। थैंक यू। और मेरा ठीक है, हम जाएंगे अब एक ब्रेक की जानिब, और हमारे साथ मौजूद थी ज़ेब बाजी जो कि एक सोशल वर्कर हैं और ख़वातीन के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं। हमारी बहुत सारी बेस्ट विशेज़ हैं इनके साथ, इनका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और ब्रेक से वापस आते हैं तो हमारे साथ मेहमान एक और मौजूद हैं जिनसे बातचीत का सिलसिला रहेगा, तो कहीं मत जाइएगा। हम वापस आते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और हमारे साथ मौजूद हैं हमारी एक नई गेस्ट जो कि रिश्ते बनाती हैं। जैसा कि आपको पता है कि रिश्ते तो आसमानों पर ही बनाए जाते हैं, लेकिन ज़मीन पर उनको जोड़ने का काम इनका है। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा फरीदा अकरम साहिबा जो कि फाउंडर CEO हैं रॉयल रिश्ता कनेक्शन की। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं मैडम आप, और किस तरह से क्या चल रहा है आपका काम वगैरह? करम है। सबसे पहले तो समी भाई का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इतना तामुन किया मेरे साथ, और आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप हमारे इवेंट में भी आए और हम बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ मिलकर आपने बहुत ताउन किया है, तो इसमें बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। ये बहुत ऑनर की बात है हमारे लिए, जज़ाए खैर अता फरमाए इस चीज़ का। आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में आई और हमें इज़्ज़त बख्शी। तो कुछ बताइए अपने बारे में, कैसे इस सफ़र का आगाज़ किया, क्या क्या मुश्किलात पेश आई? माशाल्लाह बहुत तवील है, बाल भी सफ़ेद हो गए इसी चक्कर में हमारे, तो माशाल्लाह से 17-18 साल हो चुके हैं इस फील्ड में। तो बस अब हमने अपना एक ग्रुप बनाया है माशाल्लाह से रॉयल रिश्ता कनेक्शन। उसमें माशाल्लाह से तमाम मुस्तहिक ऐसी हमारी बहनें जो मतलब बिल्कुल भी इससे हाव नाउ नहीं है उनको मैच मेकिंग की, हमने उनको ऐड किया, अपना ग्रुप बनाया है। तो उसमें हम ऐसी मैच मेकर जो ऑनलाइन वर्क करती हैं उन सबको हमने ऐड किया है, ताकि वो जितनी भी हमारी घर बैठी हुई बहनें बेटियाँ हैं ना, वो आसानी के साथ ऑनलाइन वर्क कर सकें मैच मेकिंग के हवाले से। क्योंकि इतने सारे ग्रुप्स बन गए हैं तो इसमें बहुत सारे फेक लोग भी आते हैं, बहुत सारे सही भी लोग हैं जो वर्क कर रहे हैं मैच मेकिंग के हिसाब से। तो माशाल्लाह से इसी तरीके से हमारे ग्रुप चल रहे हैं, और भी माशाल्लाह समी भाई का भी साथ है हमारे। तो बस सबके लिए काम चल रहा है, रिश्तों का अल्लाह ताला ने ज़रिया बनाया हुआ है। और ये है कि हमारा एक हेल्पिंग बॉक्स भी है माशाल्लाह से RRC के नाम से, रॉयल रिश्ता कनेक्शन। वहाँ पर हम मुस्तहिक अफराद के लिए जो हमारी मैच मेकर बहनें हैं उनके लिए हम माशाल्लाह बहुत सारा वर्क कर रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं, राशन मतलब XYZ जो भी मतलब प्रॉब्लम होती है उनको मेडिसिन के हिसाब से किसी किस्म के भी, तो हम लोग अपना एक माशाल्लाह रॉयल रिश्ता के हिसाब से एक ग्रुप ये भी रन कर रहे हैं। ताकि और मुझे एक और सबसे रिक्वेस्ट ये भी करनी है कि माशाल्लाह से जो हमारा हेल्पिंग बॉक्स है तो इसमें ऐसे अफराद हमारे साथ जुड़ें जो इस कार्य खैर में हिस्सा ले सकें, नेकी के कामों में। बिल्कुल बिल्कुल। और बस इंशाल्लाह मैच मेकिंग के अंदर देखें बहुत सी आपको पता है मुश्किलात हैं, जिसमें शादियां करवाना, फिर उनकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस देना, फिर उसके अलावा वो क्लाइंट्स का प्रेशराइज करना। जी माशाल्लाह से ये बात तो आपने बहुत कही, क्योंकि ये 24 घंटे का हमारा काम होता है, हम लोग ऑनलाइन ही रहते हैं। ऐसा कोई वक्त नहीं होता कि हम लोग किसी अपने क्लाइंट को या फिर किसी और को, अपनी मैच मेकर को आंसर ना दे रहे हों। कंटिन्यू हम पूरी रात जाग ही रहे होते हैं कि हाँ जी आपको मैसेज देना, आपको मैच देना, ये तमाम चीज़ें। बस ये थोड़ा सा अल्लाह ताला हमारे जो कहना चाहिए क्लाइंट हैं उनको भी हिदायत दे कि वो निकाह को आसान बना दें, तो हमारा मैच मेकिंग का मसला भी हल हो जाएगा। जितनी हमारी मैच मेकर कंटिन्यू काम कर रही हैं उन लोगों को ये प्रॉब्लम बहुत आती है कि उनके क्लाइंट ही उनको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। देखिए जोड़े आसमानों पे बनते हैं, ठीक है, लेकिन कोशिश इंसानों को भी करनी चाहिए कि थोड़ा सा वो मैच मेकर्स के साथ ताउन करें। तो इसी चीज़ पे हम लोग वर्क कर रहे हैं कि अल्लाह करे कि सबके लिए आसानी हो जाए, सबके मैच बने, सबके रिश्ते। हमारी दुआएं आपके साथ हैं जी। हमारे पास जैसे वक्त ज़ाहिर है कि कम है, प्रोग्राम जो है वो अपने
जानिब रवां दवा हैं, तो मैं तारिक साहब से कहना चाहूँगी कि आप कोई छोटा सा पैगाम इस प्रोग्राम के तवज्जुह से कोई अपील करना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं? बहन, सबसे आपने फ़लस्तीन के ऊपर बात की है, तो तफसीली किसी बात नहीं हुई, बहन ने थोड़ा सा जिक्र किया है। मैं इस मौका पे आपके चैनल के तवज्जुह से, आपका चैनल तो आवाज़ उठा ही रहा है, करामत साहब ने बड़ा काम किया इसके ऊपर, बड़े मसाइल जो भी थे उजागर करने की कोशिश की है, उसके लिए मैं तमाम उम्मत मुस्लिमा से अपील करूँगा, जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं, कि देखें लोग तो एहतजाज भी कर रहे हैं, जुलूस जलसे सब हो रहे हैं, पूरी दुनिया में हो रहे हैं, तो जो हमारे हुक्मरान हैं, मुस्लिम ममालिक के हुक्मरान, अगर ये एकदम एक साथ खड़े होकर अक़वाम मुत्तहिदा में बड़े बड़े फार्म जो भी इनके पास हैं वहाँ आवाज़ बुलंद करें और सख्त ज़बान, सख्त आवाज़, छोटे छोटे बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं, तो ये शहीद हो रहे हैं, बड़े बेदर्दी के साथ उनको मारा जा रहा है, तो इसके लिए ये आवाज़ बुलंद करेंगे तो इसराइल को पता चल जाएगा और वो इस जुल्म बर्बरियत से बाज आ जाएगा। बाकी ये अपील जो मैंने अभी ये सारी की हैं, मेरी आम आदमी को, हुकूमतों को, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को और मकामी गवर्नमेंट को ये भी गुजारिश है कि अभी जो आलूदगी जो है कराची के अंदर हवा में जो आलूदगी का आलम है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, लोग बीमार हो रहे हैं, तो इसके लिए कोई ग्रीनरी होनी चाहिए। ये हुकूमतों का काम है, हमारे शहर को ग्रीन करें, अच्छा करें, आब व हवा अच्छी हो, जिससे हमारे मुश्किलात थोड़ी सी कम हो। बाकी मुश्किलात तो बढ़ती जा रही हैं, जैसे मैंने अपील अर्ज़ भी किया है कि मकामी जो हुकूमतें हैं उनको मजबूत करें, जिसकी वजह से ये कराची अच्छा होगा तो पूरा पाकिस्तान। थैंक यू सो मच। अब मैं आऊँगी सत्तार नियाज़ी साहब, आप कोई पैगाम देना चाहें, कोई मज़दूरों के हवाले से कोई अपील करना चाहें तो आप हमारे प्रोग्राम के तवज्जुह से कर सकते हैं। मैं तमाम मेहनत कशों से भी और ख़ुसूसी तौर पर आदरों से और हुकूमत सिंध से, तो वो मज़दूरों की फलाह व बहबूद के जो इदारे हैं उन पर करप्शन का खात्मा करें, मज़दूरों को जो फलाह बहबूद की स्कीमें हैं उनको पाए तकमील तक पहुँचाया जाए। मज़दूरों के कानूनी हकूक़, बुनियादी हकूक़, ये आजर का और ख़ुसूसी तौर पर इदारे जो हैं, लेबर डिपार्टमेंट हो गया, सिंध वर्कर वेलफेयर बोर्ड, सोशल सिक्योरिटी, EOBI, तमाम का ये कानूनी हक है और हुकूमत सिंध का ख़ुसूसी तौर पर कि वो इन इदारों से सख्ती से वो निपटे और इनको पाबंद करे, वो मज़दूरों की फलाह व बहबूद और उनके जो बुनियादी और इंसानी कानूनी हकूक़ हैं उनको पूरा किया जाए। थैंक। बहुत शुक्रिया आपका। जी कौसर, आपकी तरफ आएंगे, बस प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, जाते जाते आप कोई पैगाम देना चाहें? जैसा कि मैं एक मीडिया पर्सन हूँ तो ज़ाहिर है मैं मीडिया वालों की ही आवाज़ बनना चाहूँगी कि जो हमारे साथी है, चाहे वो एंकर हो, रिपोर्टर हो, फील्ड के कोई भी लोग हो, मीडिया के हवाले से, तो ज़ाहिर है वो चैनल्स में काम कर रहे हैं, ठीक है, वो अपना वक्त दे रहे हैं, वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं, तो कहेंगे मैं चाहूँगी कि तमाम चैनल से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि सहाफ़ियों के साथ और इन लोगों के साथ नाइंसाफ़ी ना करें। वो अगर अपना वक्त दे रहे हैं, वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनकी तनख्वाहों को बर वक्त ये अदा करें। थैंक यू सो मच कौसर, थैंक यू। नहीं होती, ये बहुत तकलीफ दे चीज़ है। बहुत शुक्रिया, आप तमाम मेहमानों का हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं और प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, आप सबसे भी इजाज़त चाहेंगे और इस उम्मीद के साथ कि ज़िंदगी रही तो फिर आपसे ज़रूर मुलाकात होगी। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान।